At the edge of Delhi, the Yamuna moves slowly past the city. For some, the river is little more than a polluted stretch of water. For others, it is still a source of food, work, and survival. The riverbank here is not a tourist spot. It is a workplace. Every morning, dozens of fishermen cast their nets from this stretch. Their boats are old, their nets are worn, but the river has changed far more than any of their equipment. Every morning, 63-year-old Sipahi Singh wakes before sunrise. He lights a clay stove and prepares a simple meal for the fishermen he works with. He has fished this stretch of the Yamuna for nearly 4 decades. He says lighting the fire is easy, finding food from the river is the difficult part, because the Yamuna he grew up with is no longer the same river. बहुत बदल गया। पहले बहुत बढ़िया जमुना था, हरा पानी था, सब खाते से पीते से पानी पीते से जमुना के। अभी का डेट में तो कहीं से गंदा नाला है, कहीं से कुछ है, कहीं से कुछ है। अभी जमुना का पानी कोई नहीं पीता, कूला करने से महकता है। ऐसा समस्या आ गया है। तो पहले जैसा जमुना नहीं लगा, अब होगा नहीं जमुना ऐसे गंदा से। लोग बाद कूड़ा कबाड़ा इसी में सब बहाते जाते हैं। तो Even so, Sipahi Singh and the others keep coming back to the same water. There is no other option. When asked what it is like to fish from a polluted river, his answer is short. जमुना का पानी थोड़ा महकता है। अभी इसके डेट में, अभी के डेट में पहले से बहुत सुंदर था, ऐसी बात नहीं है। जमुना वाला अभी के डेट में बिल्कुल खराब चल रहा है। Along the river bank, small clusters of fishermen live in makeshift homes. Most of them are migrants from Bihar. Their families live hundreds of kilometers away. Wives, children, and parents remain in the villages, while the men stay here for months at a time. Life in Delhi is expensive. Once every few months, when they have saved enough money, they travel back home. For nearly 30 years, their routine has remained unchanged. Casting nets at dawn, pulling the catch from the water, selling some fish in the market, and keeping the rest for themselves. But as Yamuna became more polluted, the fish began to disappear. एक जो गंदे पानी चल रहा है ना, इसके कारण मच्छी नहीं मिल पा रही है। हाँ, ये कंटिन्यू भी जब पानी शुरू हुआ तो गंदा पानी स्टार्ट हो गया, गंदे पानी स्टार्ट हुआ तो मच्छी नहीं मिल पा रही। हर साल में तो थोड़ी बहुत मिलती थी, मतलब इस साल में जो है कि बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। Fishing in the Yamuna is not illegal. Many of these fishermen work here with the government licenses, but they say having a license does not mean having support. तो सरकार का ये कहना, जब लाइसेंस हम लोग को देता है तो पहले तो वहाँ शिकारी का देखना चाहिए कि भाई हमारा कि कोई शिकारी का तबीयत दब है नहीं है। तबीयत तो भी अगर कोई शिकारी कुछ हो गया तो कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए सरकार को, लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। बस लाइसेंस दे दिया और आइए मारिए, मिला तो मिला, नहीं तो बस बैठे खाइए। का फोन आ रहा है हम लोग का मल्लाह के खाते में क्या हो रहा है, हम लोग कुछ जानकारी नहीं होता। आता है तो वो लोग क्या करता है, ऐसे वैकेंसी निकालेगा, हाँ फलाना चीज़ आने वाला है, आ गया है, हम लोग से को बुला लेगा, हम लोग का शिकारी लोग का हाँ लिख लिए हो गया। आज तक कुछ भी नहीं मिला, 25 साल से ऊपर से कुछ भी नहीं मिला है। The Yamuna flows nearly 1370 kilometers across northern India. That it is the short stretch that passes through Delhi that carries heaviest burden of pollution. Environmental agencies estimate that thousands of millions of liters of untreated sewage and industrial waste enter the river here every day. And despite the pollution, fish from these waters still make their way to local markets. For the fishermen, it is a livelihood. For consumers, it raises an uncomfortable question. Is the fish safe to eat? जो खाएगा वो तो खाएगा, वो तो लिखा नहीं है कि इसमें खराब है या अच्छा है। दुकानदार तो अच्छा करके बेचेगा, ब्लड दिखाएगा कि अच्छा निकल रहा है, ये है वो है, लेकिन हमें कैसे, डॉक्टरी जांच होके तो आता नहीं है, तो मेडिकल रिपोर्ट तो होती नहीं है मछलियों में। आपने मटन शॉप में देखा होगा कि मीट के ऊपर स्टैंप लगी रहती है कि मेडिकल के उसमें हो रखा है। कई बार पानी की वजह से ही होता है, कई बार ये लोग रखते हैं, बर्फ डाल के रखते हैं, तो कई बार 2-4 दिन पहले लेते हैं,
तो इस तरीका का भी हो जाता है। जो भी हम देख कर लेते हैं, अच्छी मछली कोई भी लेगा खाने के लिए है तो हेल्थ बेसिस पे भी आप हाइजीन देख कर ही लेंगे मछली, तो इसीलिए अपने से देख कर थोड़ा सा लेना पड़ता है। In the market, some fish arrive from the sea, others from rivers like Yamuna. But when fish live in polluted water, experts say the risk does not remain in the river alone. It can travel through the food chain. जैसे मछलियां किसी और ऑर्गेनिज्म एल्गी को खा रही हैं या दूसरी छोटी मछलियों को खा रही हैं, तो उनसे ये जो पॉल्यूटेंट है वो उन मछलियों में आ रहा है। फिर उन मछलियों को अगर हम खाते हैं तो वो पॉल्यूटेंट हमारे अंदर भी आएंगी, तो हमारे लिए किसी तरीके की बीमारी पैदा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें तो कैंसर जैसी बीमारियां भी इन मछलियों को खाने से हो सकती हैं। Activist who has worked for years on the Yamuna say the crisis cannot be solved by the individual choice alone. Cleaning the river will require changes in how cities treat their waste, manage sewage, and control industrial pollution. जितनी दिल्ली को मछली की खपत है, जमुना की आपूर्ति उससे बहुत कम होता है, तो मछली खाना अगर बंद भी कर देगा तो मछली तो कहीं ना कहीं से आएगा, लेकिन उससे जमुना साफ़ नहीं होगी ना। मान लीजिए मैं मछली खाना बंद कर दूँ, जमुना के किनारे की सब्जी खाना बंद कर दूँ, तो उससे जमुना तो साफ़ नहीं हो सकती। जो शहरीकरण जो हमने का जो दर्शन गढ़ा है और उसकी जो दिशा तय की है, उसमें घर से निकलने वाले जो जल है, वो जल और सीवेज दोनों को हमने निस्तारण करने के लिए कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं अपनाई है, और वो पूरा का पूरा गंदा पानी कहीं ना कहीं जाता है, और वो दिल्ली में संजोग है कि जमुना है, वो जमुना में जाता है। तो आपको घरों से, मोहल्लों से निकलने वाले, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जल शोधक संयंत्र न सिर्फ लगाने से होगा, बल्कि उसको मेंटेनेंस करने से होगा, बराबर चौकसी से होगा, और अनट्रीटेड पानी उसमें नहीं जाएगा। In Delhi, that dirty water goes into the Yamuna. Building sewage treatment plants is only part of the answer, say those who work on the river. The bigger problem is that the ones already built are often not running properly. Untreated water keeps finding its way in. जब तक इसकी पूरी कोशिश नहीं होगी सरकारी लेवल पे, तो व्यक्तिगत लेवल पे नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार का ही सबसे बड़ा इसमें रोल है। सरकार ही ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, और सरकार अगर सख्ती नहीं करेगी, सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तब तक जमुना साफ नहीं हो सकती है, और उससे मछलियाँ भी वंचित नहीं रहेगी और लोग भी वंचित नहीं रहेंगे। For Sipahi Singh and the fishermen who share this riverbank, the Yamuna is still the center of their lives. It may no longer look like the river they remember, but until another livelihood appears, they will keep returning to its water. Because for now, the Yamuna is still the only place their nets can go.